لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین. وقال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: انا قتیل الابرات. وقال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، کائنات کا پالنے والا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یا اللہ، ان نوجوانوں کی تمام کاوشوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرما اور انہیں اپنی بارگاہ سے ان تمام محنتوں کا اجر جمیل عطا فرما. اور اے میرے معبود، ہم نے اس عزاداری میں، اس جلوس عزا میں جس قدر بھی محنت کی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے. بیک درخواست ہے کہ جب حسین کی ماں زہرا در جنت پہ کھڑی ہوں تو بس ہمارے لیے اتنا کہہ دیں کہ اے میرے پروردگار، ان کی خطاؤں کو معاف کر دینا، کیونکہ یہ میرے لال حسین پہ رونے والے ہیں. عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں ہے زیادہ ستم تم پہ یا امام. مولا نے 3 بار کہا شام شام شام. پوچھا مولا کیوں؟ کہا سرننگے مائیں بہنیں تھیں اور گرد خاص و عام. ارے زینب کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. سید سجاد سے جب کسی نے مدینے میں پوچھا کہ میرے مولا یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ عزادارو، جناب شہزادی کونین کا رومال خالی نہ جانے پائے. اختتامی تقریر ہے، الوداعی تقریر ہے. کسی کی زندگی کے ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے. جس قدر ہو سکے آج حسین کی اس 4 سال کی بچی پہ آنسو بہا لو جسے اس کے سن سے زیادہ تماچے مارے گئے تھے. مولا، آپ کو کس چیز نے بوڑھا بنا دیا؟ میرا مولا یہ کہتا ہے کہ مجھے 2 چیزوں نے بوڑھا بنا دیا. کہا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ امام نے فرمایا، ایک زینب کی بے پردگی، دوسرے میری بہن سکینہ کا لاشا اور جنازہ. 4 سال کی بچی کہاں تک ظلم و ستم سہتی. آخرکار مجبور ہو کر ہاتھوں کو جوڑ کر بھیا سید سجاد کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہنے لگیں، اے بھیا سجاد، میرا ایک پیغام شمر تک پہنچا دو. کہا کون سا پیغام ہے؟ کہا شمر سے کہہ دو جتنے تماچے مارنا ہو سکینہ کو مار لے، مگر تماچے مارنے کے بعد تانے مت دیا کرے. کہا وہ کون سے تانے دیتا ہے؟ کہا پہلے تو وہ مجھے تماچے مارتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے سکینہ اب بلا اپنے چچا عباس کو، تیرا چچا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا نا، دیکھتا ہوں تیرا چچا تیرے بلانے پہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے.
आपको कोई गम न दे जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया गम बांटने को आती है। हाय कितनी गरीब है जहरा, पुरसा लेने भी चल के आती है। टूटी हुई जन्नतुल बकी की कब्र छोड़कर, मैंने रवायत में पढ़ा है, जो कुछ पढ़ूंगा जनाब सकीना के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। मैंने रवायत में पढ़ा है, जब कहीं भी मेरे मौला हुसैन की सफ़े अज़ा बिछने लगती है तो एक बीबी सबसे पहले जन्नतुल बकी से उठती है, अपनी कब्र को छोड़कर सीधे शाम आती है और अर्ज करती है, बेटी ज़ैनब क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भैया की सफ़े अज़ा बिछ रही है। फिर ये दोनों बीवियां वहां से चलती हैं, जिंदाने शाम के गोशे में आती हैं और कहती हैं, ए बेटी सकीना क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बाबा का मातम करने वाले आ चुके हैं। जब ये तीनों बीवियां फर्शे अज़ा पे आ जाती हैं और जब ये गिरिया करती है ना आजादारो, तो सिर्फ ये नहीं रोते बल्कि आसमान पर मौजूद मलाइका भी इनका गिरिया देख के रोने लगते हैं। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रवायत पेश करता हूं, जरा अंदाजा करिएगा कि हुसैन अपनी बेटी सकीना को कितना चाहते थे। खुदा सबकी गोदियां आबाद रखे, खुदा तमाम बे औलादों को औलाद अता फरमाए, हर एक की बीमारी को जनाब सकीना के सदक़े में दूर करे। एक मर्तबा मेरे मौला 2 साल की जनाब सकीना थी, उनको आगोश में लिए हुए हैं और अपने नाना के मज़ार पे सलाम करने जा रहे थे। सकीना आगोश में थी, अभी चंद कदम आगे बढ़े थे तो क्या देखा, एक शख्स है जो बुंदे बेच रहा है, जो गोशवारे बेच रहा है। सुनिएगा रवायत अज़ादारो, मेरी माँ बहनें भी रवायत सुने, इंशाल्लाह जरूर गिरिया करेंगी। क्या देखा कि एक शख्स है जो बुंदे और गोशवारे बेच रहा है। मेरा मौला वहीं ठहर गया, कहा जरा ठहर जा, मुझे 2 गोशवारे दे दे ताकि मैं अपनी बच्ची सकीना को पिन्हा दूं। जुमला सुनिएगा आज़ादारो, वो बेचने वाला ठहरा, उसने 2 बुंदे निकाले, इमाम हुसैन के हाथ पे रखे, मौला हुसैन ने उसकी कीमत दे दी, सकीना के कानों में पिन्हा दिए। अभी जैसे ही बेचने वाला 2 कदम आगे बढ़ा था, हुसैन ने कहा रुक जा। जब वो रुका फिर मेरा मौला आगे बढ़ा, मेरे मौला ने 2 गोशवारे और लिए, उसके बाद जनाब सकीना का सदका उतारा। सदका उतारने के बाद कहा ले जा। कहा मौला मेरी समझ में नहीं आया, आपने कीमत भी दे दी, गोशवारे भी वापस कर दिए, मतलब क्या है। मौला ने रो के फरमाया, भाई इतना याद रख, अगर कहीं कोई यतीमा नजर आए तो मेरी सकीना की तरफ से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सकीना की तरफ से सदका उतार देना। जरा सोचो कितनी मोहब्बत करता था मेरा मौला। ये बेटियों से मोहब्बत ही तो है कि खानदाने अहले बैत में एक ऐसी बेटी हो कि जब से दुनिया में आई हो तब से हमेशा बाबा के सीने पे सोई हो। यहाँ तक के रवायतें बताती हैं कि जनाब सकीना अपने बाबा हुसैन के सीने पर सोने की इतनी आदी हो चुकी थी कि उनको माँ के पास नींद नहीं आती थी, हमेशा अपने बाबा का सीना तलाश करती रहती थी। वही सकीना जब उसे बाबा का सीना न मिला ना, तो मैंने किसी रवायत में नहीं देखा कि 10 मुहर्रम के बाद से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक कभी सकीना चैन से सोई हो। जुमला सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कभी सकीना चैन से सोई हो। अज़ादारो रवायत बताती है, छोटे छोटे बच्चों का मैं एक नेचर और फितरत बताऊं, अगर बच्चों के सामने कोई किसी पे तमाचा मार रहा हो ना, तो बच्चों के जहन में बार बार वो मंजर आता रहता है। अज़ादारो वो सकीना सोए तो कैसे सोए, जिस सकीना ने अपनी आंखों से देखा था कि ये मेरे बाबा का कातिल है, जिसने शहादत के बाद मेरे बाबा के लाशे को पामाल किया, सरबनों के नेज़ा पे चढ़ाया, भैया असगर का लाशा जमीन से खोदा। कैसे सोए सकीना,
रवायत कहती है जब जब जनाब सकीना शिमरे मलऊन को देखती थी फौरन अपने बाबा के कत्ल का मंजर याद आ जाता था। वही सकीना जिसके कानों में गोशवारे थे। एक जालिम है, उससे जनाब मुख्तार पूछते हैं कि तू ये बता कि तूने करबला में कैसा जुल्म किया। वो हाथों को जोड़ लेता है, मैं बहुत इख्तिसार से बयान कर रहा हूं। वो हाथों को जोड़ लेता है, कहता है मुख्तार न सुन पाओगे। कहा मैं क्यों नहीं सुन सकता? कहा इसलिए कि आप हुसैन के आशिक हैं, आप हुसैन के मोहिब हैं, आप ना सुन सकेंगे। मुख्तार ने कहा नहीं तू बता, मुझे सुनना है ताकि मुझे पता तो चले कि करबला में कैसा कैसा जुल्म हुआ। रवायत बताती है जालिम ने जबान खोली। जालिम कहता है जब हुसैन मारे गए, खैमे जुमला सुनना आजादारों बहुत रोएंगे। जालिम कहता मुख्तार सुनो, जब हुसैन मारे गए, खैमे जलाए गए, तो मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है जिसके कानों में बड़े कीमती गोशवारे हैं। मैं उसकी तरफ दौड़ा कि उसके कानों से गोशवारे निकालूं। इतने में उस बच्ची ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। खबरदार जालिम, मेरे करीब ना आना, मैं फातिमा ज़हरा की पोती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैं चादर ततहीर की वारिस हूँ, मुझे हाथ न लगाना। बच्ची कहती है, सकीना कहती है जालिम ठहर जा, मैं खुद अपने हाथों से गोशवारे निकालती हूँ फिर तेरे हवाले करती हूँ। जालिम कहता है मैं उतनी दूर पे खड़ा था, खड़ा खड़ा देख रहा था कि वो बच्ची बार बार अपने नन्हे नन्हे हाथों को गोशवारों तक ले जा रही है मगर गोशवारे निकाल नहीं पा रही है। इतने में जालिम ने कहा अरे बीबी तू गोशवारे निकालती क्यों नहीं? सकीना ने कहा अरे जिसने गोशवारे खुद से पहने न हो वो खुद से निकाले कैसे? बस ये सुनना था, ये आगे बढ़ा। इसने दोनों हाथ सकीना के कानों पे रखा, इतनी बेदर्दी से गोशवारे खींचे, सकीना के कानों की लवाए एक मर्तबा फराग करूं किया। ऐ चाचा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। यही हक है हुसैन की बच्ची पे गिरिया करने का। बच्ची ने तड़प के कहा चाचा अब्बास जितनी मोहब्बत से तुमने गोशवारे पहनाए थे ना उतनी ज्यादा बेदर्दी से आज सकीना के कानों से गोशवारे छीने गए। मैं रवायत पढ़ रहा हूँ, अभी आप इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे, पूरा मंजर ताजा हो जाएगा। रवायत कहती है वही बच्ची अपने बाबा को याद करते करते चचा को पुकारते पुकारते जब 10 सफर आई ना एक ख्वाब देखा। जैसे ही ख्वाब से उठी कहती है फूफी अम्मा अभी तो मेरे बाबा आए थे। अरे भैया सज्जाद अभी मेरे बाबा आए थे, मेरे बाबा कहाँ चले गए? सकीना के रोने की आवाज इतनी बुलंद हुई कि दरबार से सर मगाया गया। जैसे ही सकीना की आगोश में सर आया सकीना ने रुखसारे पे रुखसार, अरे बाबा जरा देखो तो सही कानों के गोशवारे कहाँ गए? अरे बाबा जरा मेरे रुखसारों पे देखो। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बच्ची रोती रही रोती रही रोती रही, हाय बाबा कह के जिंदाने शाम के अंधेरे में एक बच्ची ने जब हाय बाबा कहना बंद कर दिया। इतने में ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद जरा सकीना की खबर लो। सैयदे सज्जाद ने सकीना की नब्ज पे हाथ रखा। इन्ना लिल्लाह, ऐ बुपी अम्मा सकीना रुखसत हो गई। बच्ची ने जब आखिरी मर्तबा हाय बाबा कहा उसके बाद बच्ची की जबान बंद हो गई। अब बच्ची नहीं बोल पा रही है। मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ सकता आजादारों, एक छोटा सा जुमला सुने लेकिन रोने के लिए काफी होगा।
रवायत मैंने पढ़ी है, रावी कहता है खुदा किसी भी भाई को बहन का ये मंजर न दिखाए। मैं दुआ करता हूं मेरे महबूब, अल्लाह न करे किसी भाई पे ऐसी गुर्बत आए जैसी जनाबे सैयद सज्जाद पे आई। सैयद सज्जाद ने गुस्लो कफन के बाद अपनी बहन की वसीयत को याद करना शुरू कर दिया। पहली वसीयत सकीना की याद आई, ऐ भैया सज्जाद, मुझे उस मकाम पे दफन करना जहां की जमीन नम हो, इसलिए कि तुम जानते हो ना सकीना की हड्डियां प्यास की वजह से सूख चुकी हैं। दूसरी वसीयत याद आई, ऐ भैया सज्जाद, मेरे जनाजे में शिव को ना आने देना, इसलिए कि मुझे वो मंजर याद है जब मेरे भैया असगर का छोटा सा लाशा जमीन के अंदर से निकाला गया। ऐ भैया सज्जाद, मेरी आखिरी वसीयत ये है ना कि मुझे कफन देने के लिए कपड़े न खरीदना, इसी जले हुए कुर्ते में मैं कहूंगा बीबी क्यों अजब नहीं आवाज आए, अरे मेरा बाबा बेगोरो कफन दफनाया गया। जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला, मेरा बाबा बेगोरो कफन दफनाया गया। सकीना किस तरीके से अपने कफन का इंतजाम करे। लीजिए आजादारो, वही जला हुआ कुर्ता है। मौला सज्जाद ने मुझे इंसाफ से बताएं, एक लम्हे के लिए जरा मुझे इंसाफ से बताएं, आप हजरात ने जनाजा देखा है, जनाजे को उठाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? एक जनाजे को, अगर समझ गए जुमला तो जरूर रहोगे, एक जनाजे को उठाने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत होती है। आए मेरा गरीब इमाम सज्जाद अपनी बहन के जनाजे को कैसे उठाए? हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई है। अब जब जनाजे को उठाया, अजब नहीं फरात का रुख किया हो, ऐ जजाता तुम्हारी भतीजी का जनाजा उठ रहा है। जजा क्या मदद करने ना आओगे? लाश अब्बास तड़पा होगा। ऐ बेटा सज्जाद, मेरी तरफ से भी कांधा दे देना। अजब नहीं लाश अब्बास तड़पा हो और एक आवाज आई हो, ऐ बेटा सज्जाद, मेरी तरफ से भी कांधा दे देना। आजादारो, इसीलिए उलमा बयान करते हैं कि जब मौला सज्जाद ने, रवायत सुनो, मौला सज्जाद ने जब सकीना का लाशा उठाया, एक मर्तबा अली आए, उन्होंने कांधा दिया, एक मर्तबा हसन आए, उन्होंने कांधा दिया, एक मर्तबा और कोई आया, उन्होंने कांधा दिया, एक मर्तबा एक शख्सियत और आई, आने के बाद कहती है सज्जाद मैं तो नहीं उठा सकता, तुम उठा देना। मौला सज्जाद ने कहा क्यों? आने वाले ने कहा जनाजा वो उठाता है जिसके हाथ मौजूद हो। मेरे शाने करबला में कलम हो गए। सज्जाद जनाजे वो उठाता है जिसके हाथ सही सलामत हो। अरे मैं कैसे जनाजा उठाऊं? मेरे शाने तो करबला में कलम हो गए। लीजिए आजादारो, जनाबे सकीना का आखिरी जुमला, जनाबे सकीना का ताबूत उठा, आगे आगे मौला सज्जाद, पीछे पीछे सैदानिया। हाय सकीना, हाय सकीना की सदा बुलंद थी, पूरे जिंदान में कोहराम मचा हुआ था। मौला सज्जाद ने अपनी बहन के लाशे को उठाया, एक मर्तबा जब लहद के हवाले करने लगे, आवाज दी, ऐ बाबा आपकी अमानत आपके हवाले। 2 हाथ निकले, आजा मेरी सकीना, तुझे कलेजे से लगा लूं, तेरा बाबा तेरे बगैर सुकून नहीं।
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا زینب بنت علی، السلام علیکہ یا کلثوم بنت علی، السلام علیکم یا اسیران کربلا، السلام علیکہ یا سکینۃ بنت الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس ویانیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انجمن غنچہ جعفریہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام زائرین اور آئے ہوئے تمام مومنین کرام انجمنی دستوں کو اپنے دل سے مبارکباد کا تحفہ پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے جلوس میں تعاون فرما کر ہمارے جلوس کو کامیاب کرنے میں مدد فرمائی۔ بہت اور تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ وہ تبرک لے کر کے ہی یہاں سے رخصت ہوں۔